स्टूडेंट अपलिफ्टिंग और उचूरस की खुशी की तकरीब 2024 हमें स्टूडेंट अपलिफ्टिंग एंड उचूरस फेलिसिटेशन तकरीब 2024 का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। ये एक तकरीब उन तलबा के एजाज़ और हौसला अफजाई के लिए वक्फ है जिन्होंने तालीमी साल 2023-2024 में 10 और 12 जमातें कामयाबी से पास की हैं। ये तकरीब उनकी मेहनत, लगन और तालीमी कामयाबियों का जश्न मनाती है। मिस्टर एस बालन, सीनियर एडवोकेट, कर्नाटक हाई कोर्ट। जनाब मोहम्मद रफ़ी पाशा, असिस्टेंट कमिश्नर, GST कर्नाटक। प्रियादर्शनी सुनीगोपा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, वाइटफील्ड। HAL फहद रहमानी, चीफ एग्जीक्यूटिव, रहमान ग्रुप। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान न सिर्फ कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद देंगे बल्कि तलबा को उनकी मुस्तक़बिल की कोशिशों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने की तरगीब देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी बसीरत और तजुर्बात भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम की झलकियां, इस्तकबालिया तकरीर, पुरतपाक इस्तकबाल और तकरीब का तारुफ, मेहमानों की तकरीरें, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से मुतासिर कुन अल्फाज और मशवरा। एजाज़ी तकरीब 10 और 12 जमात के आला कामयाबी हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स से नवाजना। हौसला अफजा सेशन, हौसला अफजा गुफ्तगू जिसका मकसद तमाम तलबा के जज्बे को बढ़ाना है। सकाफती परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों के जरिए तलबा की सलाहियतों का मुजाहिरा। शुक्रिया का वोट, तमाम मेहमानों, शुरका और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना। हम तमाम तलबा, वालिदैन और खैर खाहों को दावत देते हैं कि वो उन नौजवान जहनों की कामयाबियों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखें। ये तकरीब न सिर्फ उनके तालीमी सफ़र में एक अहम संग मील की निशानदेही करती है बल्कि उनके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कामयाबी की कहानियों से मुतासिर होने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम भी करती है। Share your experience from the bottom of your heart to your brothers and sisters. Beta? My name is Aisha Fatima. I have secured 97% in my SLC board. I have completed my studies in Huda National School. I am from Nagvara. My aim is to become a doctor because it's my parents' dream. So inshallah I'll try to fulfill it. The only thing I want to say here is dream big. How much you dream big, the more potential you get to fulfill it. So, thank you so much. I scored 98% in second PU. I studied in Samruddhi PU College, and my immediate goal, short-term goal, long-term goal is everything is CA. I want to become a CA, and I want to make my parents proud as they have put so much efforts in me. So I want to make them proud. Then I want to put CA in front of my name. I just want to be a CA to so, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Umayya Sahar. I am from Bailan Sapur. I have completed my SSLC in Citizens High School by securing 98%. And now I studied my college in Samruddhi PU College. I scored 97% by securing 3rd rank. My goal is to be a chartered accountant and make my parents proud. This goal is not only to live a luxurious life but also to serve the poor people and whoever the needy people are there to serve them. I thank the Almighty by whom I have come and here I have been successful. And the second big thanks go to my parents who have always been my motivation and always supported me. I also thank the Dinyat Sifa Foundation for uplifting and encouraging and motivating the students to boost up and cheer up and become successful in our life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'm thankful for the DSF Foundation for giving me opportunity to speak few words. And I like to thank you for Sayyid Usman Wali Uncle who called me here and giving this opportunity. And I got 97% in second PUC where I studied in Samruddhi PU College. And I am continuing my higher studies in Silicon City College as I have taken BCA degree. I am thankful to my parents who are the backbone of me today, where I am standing today, for what I am standing. This all by their support and the praise of Allah. Without Allah we cannot do anything, and I have the support from the parents. And today what I am here is because of them itself. I am nothing without them.
The what speaking words is by them only. I'm thankful to first for Allah and then my parents. I'm currently studying in Sri Chaitanya School, 11th grade, along with JEE Integrated Coaching. My main goal is to pursue my degree of engineering from IIT Madras, but my main dream is to stand in front of my dad wearing the IPS officer uniform. I want to clear a UPSC exam in my first attempt, and I want to become an IPS officer. That's my main dream. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah, He has given me this opportunity and the support of my parents. And I have secured 96% in my second PUC. And the thing is, we should aim and then work on it. We must dream, then fix and aim, and constantly, consistently work hard on it. And ask Allah for His support. And Allah will surely help you. And my aim is to become a software engineer, but I am inspired by the people who are in service of others, where now I heard a lot of speeches, and I am truly inspired by those people who have dedicated their life in services, and I am also going to do the same, inshallah. Congratulations to all the kids जिनको स्टेज पे बुलाया गया, who scored 90% plus. Congratulations, आपने एक स्टेज पार किया है and I'm sure that आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे. But जिन्होंने उससे कम भी स्कोर किया है, is it anyways less than that? No. अगर आप अपने आसपास देखो, जब आप ऑब्जर्व करो आपके आसपास किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, किस तरह की सर्विस है कम्युनिटी में, तो क्या सिर्फ 90% वाले या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, क्या वही है पार्ट ऑफ कम्युनिटी? क्या वही सिर्फ कंट्री की सेवा कर रहे हैं? सो बच्चों जिनको स्कोर हुआ है, आप जिस भी स्कोर पर एज में आए हो, योर जर्नी नेवर स्टॉप्स बिकॉज ऑफ मार्क एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. आप जहाँ पे हो, आप वहाँ से ही मेहनत स्टार्ट कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो. मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता कुमार. ऐसा सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है, इट्स आई एम नॉट दैट ग्रेट. हाँ, ये है कि जब मैं छोटी थी, यू नो, क्या डिफरेंस होता है जब वो पूछ रहे थे ना आपने क्यों 90% स्कोर किया आप और किसी ने 60% स्कोर किया. आई थिंक सबसे मेजर डिफरेंस होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल. आप जब बड़े हो रहे थे, छोटे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने आसपास? आपने लोगों को देखना, आपने सोसाइटी को देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप क्यों बनना चाहे? मैं क्यों बनना चाह रही थी? मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी प्रोफेशन में किसी को गलत करते हुए ऑब्जर्व नहीं किया है. मैंने उस प्रोफेशन में जिसने अच्छा काम किया है, मैंने उसी को ऑब्जर्व किया है. मैंने देखा डॉक्टर्स को, ये डॉक्टर्स तो बड़ा मैजिकल पावर है, कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं, वो कैसे देख के समझ आते हैं उनको क्या दिक्कत है. तो दैट वाज मैजिकल फॉर मी. मैं देख रही थी टीचर्स को, अरे टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को ऐसा क्या कर देते कि बच्चे बिल्कुल अपनी लाइफ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दे बिकम मोटिवेटेड. ऑनलाइन सिस्टम देख रहे हैं, एप्लीकेशन आप डाल दो कोई भी लोन के लिए मैना के डिपार्टमेंट में, एंड आपको ऐसे ही ऑनलाइन फंड डिसबर्समेंट हो जाता है. वो मैं ही इंट्रोड्यूस की थी, एंड इट वाज अ चैलेंज बिकॉज पैसे देने के लिए तैयार नहीं था हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो मुझे करना था बिकॉज कोई भी किसी का भी वक्त सिर्फ सरकारी ऑफिस में जाना, 10 लोगों को सलाम मारना, और ये इसलिए नहीं है. गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट, द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू हैरेस. तो इसलिए आई टोल्ड कि कोई काम करे नहीं करे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आ जाएगा तो इट विल कम टू द एमडी विल गिव द फंड्स लुकिंग एट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट. तो वो दौरान जब मैं देख रही थी तो आई फाउंड दैट जितने भी बच्चे हमारे से मदद तलब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी गिव वेरिएबल लोन KMTC में, जो बच्चों का पूरा प्रोफेशनल कोर्स की जो भी फीस है, जो उनके KEA के जो एडमिशन लेटर के बेसिस पे वी गिव देम लोन. एंड ये जो 110 करोड़ रुपए माइनॉरिटी KMTC में आए, तो हमारे टेन्यूर में वी प्रपोज्ड, क्योंकि अब तक कोई नोबडी वाज बॉदर्ड कि इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कि मतलब हमारे पास 30,000 बच्चे थे, लेकिन हमारा तो फंड 8 करोड़ आता था, उसमें कौन से बच्चे को देना, कौन से बच्चे को छोड़ना. तो वो डेटाबेस रहने से वी वर एबल टू write to the government, convince FD, and we got 110 crores, highest budget for only for education loan purpose.
आई डिडंट गिव इट टू एनी एम्प्लॉयमेंट लोन के लिए मैं नहीं पूछी, कोई लैंड परचेज के लिए नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछी है। तो नो, ये बच्चों को जरूरत है, इसमें उनको लोन चाहिए। ये अच्छी बात थी कि ठीक है 110 करोड़ आ गए, बट उसमें से अभी भी मुझे याद है, मेरा जो 1.5 साल 2 साल का टेन्योर था KMDC में, एक बच्चा ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, BMC में गया, मैंगलोर का बच्चा था, हिज नेम इज डॉक्टर सलमान। बाकी जो भी थे 50%, 55%, 7% एंड asserted to be quota. तो what I feel personally, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार लोग हैं। जब तक हम लोग बहुत सारी मेहनत डाल के until we are good enough for the best, we don't have right to ask for any help, is what I feel. जब तक हम हमारी मेहनत नहीं डालते, जब तक हम अच्छे मार्क्स नहीं लाते, जैसे कि 4-5 बच्चे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्लास में बाकी बच्चों का क्या? I always look at people who have not excelled and why they have not done so. जैसे यहाँ पे 2 लड़के आए, I'm sure क्लास में 50 बच्चों की क्लास है, तो 25 तो even if I take 50-50, एक 25 बच्चे तो हैं, तो बाकी 23 बच्चे क्या करें? तो 2 बच्चों को तो दे दिए, वो 23 बच्चे क्या करें? इसका मतलब ये नहीं कि उनको encourage करो, motivate करो, ये करो, वो करो, no. I don't think any child needs psychological counseling. I am a mother too. मैं भी एक माँ हूँ, so मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को psychological counseling की या motivation class की, ठीक है, those are add-ons हैं, मतलब that is like a dessert after your discipline your children. I think the जो drawback है हमारे गाँव में, family में, I think first factor to be blamed is that हमारे में बिल्कुल डिसिप्लिन है। हालांकि हमारा जो मजहब है, that's the only religion which teaches discipline in its worship also. 5 वक्त की नमाज बराबर टाइम पे its own course of nature होती है, nobody misses that. अजान जो होती है, so on today's program. I am really happy to be part of this program today. I thank the organizers who invited me. It's a good program. Students who secured good marks in their academic education, like 95, 96, 97%. It's a motivational program. So the students should be motivated to come to good position in their life so that they can serve this society, they can take part in the administration, they can be part of judiciary, they can be part of administration, they can be part of all walks of life, so that a representative democracy can be built up in the society, which would be beneficial to all communities. The communities like Dalits, Adivasis, minorities, workers, every community should have representation in the governance. Therefore, this is a very good program to motivate children to come up in their life, so clearing all their barriers. It's a good program. अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो काडुगड़ी में जो मैदान में बहुत अच्छे से ईदगाह में प्रोग्राम अरेंज किए हैं, यहाँ 2000 से 4000 के तादाद में बच्चे आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजलिस है यहाँ दूसरे कम्युनिटीज़ के जैसे बालन सर ही, हमारे जो रहमानी फाउंडेशन के सर ही मौलाना साहब, और जो के सीनियर ऑफिसर हैं अंजुम हफीज़, और जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं नूर अली साहब, मुजम्मिल साहब, और DSF के शारिफ मौलाना साहब, वसीम भाई, ऐसे बहुत सारे ट्रेजरर सेक्रेटरीज, ऐसे उनके DSF के गाइडेंस में माशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। 10th 12th बच्चों को यहाँ जो टॉपर्स हैं, ये जो 8 to 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको यहाँ इकट्ठा किया गया है पूरे मस्जिद से और DDPA ऑफिस से स्टैटिस्टिक्स लेके टॉपर्स को यहाँ बच्चों को फेलिसिटेट कर रही हैं। ये एक कौम में और ये एक समाज में और एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का काम हो रहा है। और सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के लिए क्या गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटी? हाँ, और माशाल्लाह यहाँ बच्चों को जो है अवेयरनेस दिया जा रहा है। बच्चों को यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम प्रोग्राम्स, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेचुरल कैलामिटी से डेंगू का फीवर है, कैसे हेल्थ को अच्छा रख लेना, और जो उनका मोबाइल यूसेज है और उनका जो चाल चलन है, पेरेंट्स के साथ कैसा रहना,
और अच्छी दीनदारी कैसा सीखना, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी पूरे सोसाइटी के वास्ते बहुत अच्छा मैसेज देने का, लीगल अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके इंश्योरेंस के बारे में, जॉब सिक्योरिटी के बारे में, करियर के बारे में, उनके हर ज़िंदगी के दूसरे जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उनको जो उनका ड्रेस कोड है, उनका जो टाइम है, उनका क्वालिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, इसके सब के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छे रिसोर्सफुल पर्सन्स को बुला के यहाँ गाइडेंस दिया जा रहा है। बाबा जो है उनके ड्रीम्स जो है, उनका गोल्स जो है, उनका जो विजन जो है शेयर कर लेते। वो बोलते ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बोलते, ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी, ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी एंड एनर्जी ब्रिंग्स सक्सेस। ड्रीम्स जो हवा है ना, वो एक इंजेक्शन जैसा रहते हैं। ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी एंड एनर्जी ब्रिंग सक्सेस। तो ये सक्सेस, आपके सक्सेस सेलिब्रेशन जो है आज, क्या आज आपका सक्सेस सेलिब्रेशन जो है, वो सेलिब्रेशन के लिए हमारे चीफ गेस्ट, जाने माने हस्ती, द लीडिंग डेडिकेटेड almost each and every social worker, and from judiciary department, from police department, from press, everyone, most of the people who are thinking about the country, about the nation, about the state, they know this gentleman. बहुत ही अल्लाह ताला बहुत कामयाब बनाया उनको। मैं बहुत सारे वीडियोस उनके देख रहा था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देख रहा था, पहली बार उनकी बात डायरेक्ट सुनने का मुझे मौका मिला। हमारे कर्नाटका स्टेट के हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट और बहुत सारे हो गए हैं, उनका रिक्वेस्ट है उसके बारे में ज़्यादा जाहिर करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट बच्चों को आशीर्वाद करने के आया हूँ। मैं कैसा कामयाब हुआ हूँ वो बताने के लिए आया हूँ। मुझे बोल रहे थे साकಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ। My name is Mohid Azim. I studied in Cambridge School in Capram, ICSC. I scored 95.4% in 10th along with centum in computer science. My ambition is to become an IPS officer along with pursuing my degree in engineering in computer science in IIT Madras. This program was organized by DSF, Divine Service Forever Foundation, and it's an honor to be here receiving an award and making my parents proud.